Hello everyone. So this is my first lecture on physical foundations of biochemistry, and this is for BSc first year. Let's begin with the lecture. So about 15 million years ago, universe arose, and all of you know about Big Bang theory. So there was a cataclysmic eruption of energy-rich subatomic particles, and after the eruption, within seconds, hydrogen and helium atoms were formed, and then universe started expanding. And during billions of years, stars were formed, our solar system was formed, Earth was formed. Then about 4 billion years ago, life arose on Earth. So at first there were simple microorganisms, and these simple microorganisms had the ability to extract energy from their surroundings. And at first the microorganisms, they extracted energy from the chemical compounds present in their surroundings, and then later on they switched over to sunlight. They started extracting energy from sunlight, and these organisms, they started using this energy to form biomolecules from simple elements available around. So these biomolecules, these are very important because in biochemistry we study that how these hundreds and thousands of biomolecules which constitute a living organism interact with each other and keep us alive. Okay, so if you see that the biomolecules, they are inanimate. Biomolecules are non-living, they are lifeless, because if you isolate these biomolecules from the body, all physical and chemical laws of nature applies to them, which is applied to inanimate matter. So basically biomolecules are lifeless molecules, and it is very interesting to know how these lifeless molecules, they interact with each other, and they basically keep a living body alive, living organism alive. So the study of biochemistry shows how the collections of inanimate lifeless molecules that constitute living organisms interact to maintain and perpetuate life, animated solely by the physical and chemical laws that govern the non-living universe. That means the physical and chemical laws that govern the non-living universe also govern us, the living organisms. The living organisms also follow or obey the physical and chemical laws of nature. So if you look at a living organism and a non-living matter, both are made up of non-living atoms only. ठीक है, सो मिट्टी से बनते हैं तो मिट्टी में ही मिल जाते हैं, आफ्टर डेथ या आफ्टर डिकेइंग सब मिट्टी हो जाता है. ठीक है. So what is there in a living organism that distinguish them from a non-living matter? So see, the living organisms, they have extraordinary properties that distinguish them from non-living matter. So let us have a look on these properties one by one. So the first is a high degree of chemical complexity and microscopic organization. So thousands of different kinds of molecules, they make up cells' intricate structure. So if you look at a eukaryotic cell of an animal, it is composed of membrane-bound organelles. Okay, there is a cell membrane. Cell is composed of a cell membrane, and which has a nucleus, and then there is endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, mitochondria, and then there is cytoskeleton, which is present on the cytoplasm. So there is high degree of chemical complexity and microscopic organization in living organisms. So this is one point. Then second is that living organisms, they have systems for extracting, transforming and using energy from the environment. So
living organisms need to extract energy from the environment. They need to have the energy in order to maintain the chemical complexity and microscopic organization that they have. Because without energy, organisms cannot maintain their form, their intricate structures, and do the functions. So energy is required, and living organisms have the system for extracting energy and using energy for maintaining or sustaining life. Third point is that living organisms have defined functions for each of an organism's components and regulated interactions among them. So living organisms, if you look at a plant is composed of roots, stems, branches, leaves, flowers, fruits. So all the organs, all the components of plant, all the parts of plants, they have a defined functions. Leaf has a specific role, roots have a specific role, okay, fruits have a specific role, flowers have roles. So all have defined functions, and they are all interconnected also, because leaves prepare food not for just itself, but it also supplies food to the other parts of the plant. So all the parts have defined functions, but they are connected among themselves. So even interactions among biomolecules is dynamic, and the interactions between biomolecules are also regulated. They happen in a regulated manner. And let's take one example. जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है. इसके कुछ इसके स्ट्रक्चरल रोल भी है, इसका फंक्शनल रोल भी है. कोलेस्ट्रॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन का एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, और ये कुछ हार्मोन्स के प्रिकर्सर भी है. तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो बॉडी में ही सिंथेसाइज होता है, ठीक है. लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल डाइट में ले ले, अगर बाहर से घी बहुत ज़्यादा किसी ने अगर खा लिया है, तो उसकी कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल पूरी हो गई है, बॉडी को अब और कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए, जितना डेली रिक्वायरमेंट है उतना कोलेस्ट्रॉल डाइट में ही ले लिया है. तो कोलेस्ट्रॉल की जो सिंथेसिस है वो बॉडी में नहीं होगी, ठीक है. सो द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज़ रेगुलेटेड इन दिस मैनर कि अगर डाइट में अगर उतना कोलेस्ट्रॉल ले लिया है तो फिर लिवर को सिंथेसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. तो जो सिंथेसिस है वो रेगुलेटेड है कोलेस्ट्रॉल की, ठीक है. अगर माना डाइट में नहीं लिया है तो फिर लिवर बनाएगा, ठीक है. तो एक ये चीज़ है. और दूसरा, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जब आप आगे पढ़ोगे बायोकेमिस्ट्री में. अब एक एग्जांपल इसमें फॉर एग्जांपल किसी ने खाना खाने के बाद ब्लड बढ़ जाते हैं, ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाते हैं. तो उससे क्या होता है कि पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन सिक्रीट करता है. अब जो इंसुलिन है वो क्या करता है, अपने सेल्स में अपने रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करता है और फिर ग्लूकोज के लिए एंट्री ओपन कर देता है. लाइक जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज को अब अंदर ले सकते हैं, ठीक है. तो ग्लूकोज चैनल्स को ओपन कर देता है जिससे कि ग्लूकोज जो है वो सेल्स के अंदर एंटर करते हैं. और सेल के अंदर ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज जो है इट अंडरगोज ग्लाइकोलिसिस, ठीक है. तो वो ग्लाइकोलिसिस होता है, फिर उसमें आगे उसके दो फेट रहते हैं. एक तो वो एनर्जी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो जाता है, नहीं तो फिर वो फैटी एसिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है. तो अब ये है, अब क्या होता है, जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल्स डाउन हो जाते हैं तो फिर इंसुलिन का कोई रोल नहीं रहता है. अब वो फिर उस पर बाइंड रिसेप्टर्स के साथ बाउंड फॉर्म में नहीं रहेगा, ठीक है ना. तो अब वो रिसेप्टर्स को छोड़ देगा और इंसुलिन के जो लेवल्स हैं वो भी ड्रॉप हो जाते हैं. तो इस तरह से रेगुलेटेड इंटरैक्शंस होती हैं, ठीक है. तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होता है, ठीक है. एंड दैट मेक्स देम स्पेशल. देन द अदर थिंग इज दैट mechanisms for sensing and responding
to alterations in their surroundings. So living organisms, they have mechanisms for sensing and responding to alterations in their surroundings. तो इसमें एक तो बेस्ट एग्जांपल तो यही है कि आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेंस कर लेते हैं कि बाहर सराउंडिंग में अगर कोई चेंजेस हो तो वो उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं. तो ऑर्गेनिजम्स हैव मैकेनिज्म्स फॉर सेंसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू ऑल्ट्रेशन इन देयर सराउंडिंग. सराउंडिंग में कोई ऑल्ट्रेशन होगी तो उस हिसाब से वो अपने आप को उसको उस जो चेंज होगा सराउंडिंग में उसको वो सेंस कर सकते हैं और उसके और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. और बेसिकली ये अडेप्टिव मैकेनिज्म होता है. तो ऑर्गेनिजम्स कैन अडेप्ट टू द चेंजेस इन द सराउंडिंग्स. तो इसमें बेस्ट एग्जांपल इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का ही है कि उसमें जो बैक्टीरिया है जब वो इट कम्स इन कांटेक्ट विद द एंटीबायोटिक तो दैट बैक्टीरिया चेंजेस इटसेल्फ. ठीक है, अपने आप को वो सेंस करता है, इट रिस्पॉन्ड्स इट बाय चेंजिंग इटसेल्फ, अपने आप को चेंज करता है और इट बिकम्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट. तो ये अडैप्टिव मैकेनिज्म है. उसके बाद है अ कैपेसिटी फॉर प्रिसाइज सेल्फ रेप्लिकेशन एंड सेल्फ असेंबली. सो सेल्फ रेप्लिकेशन है, जो बैक्टीरिया है वो अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है. ठीक है ना. अगर किसी बैक्टीरिया को आप किसी स्टेराइल मीडियम में डाल दें और 24 घंटे बाद देखें तो आपको मिलेगा कि पूरा का पूरा मीडिया जो है वो था, मतलब इसमें मिलियंस ऑफ कॉपीज जो है बैक्टीरिया की फॉर्म हो जाएगी. सो बैक्टीरिया हैज़ अ कैपेसिटी फॉर सेल्फ रेप्लिकेशन. ठीक है ना. और ऑल्सो सेल्फ असेंबली. ठीक है, तो वायरसेस हैं वो सेल्फ असेंबली करते हैं. इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल जो आपको मिलेंगे. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे हैव कैपेसिटी फॉर प्रिसाइज सेल्फ रेप्लिकेशन एंड सेल्फ असेंबली. यहाँ पे प्रिसाइज इसलिए बोला है कि जैसे बैक्टीरिया, अब इकोलाई ही है, इकोलाई 20 मिनट्स में 1 से 2 में कन्वर्ट होता है. ठीक है, तो इकोलाई सेल्फ रेप्लिकेट, ठीक है, वो 1 से 2 होता है इन अ प्रिसाइज मैनर. ठीक है, 20 मिनट्स में वो 1 से 2 एक बैक्टीरिया से 2 डॉटर सेल्स बनेंगे. ठीक है, सो दिस इज देयर. और हर सेल का अपना एक स्पीड है सेल्फ रेप्लिकेशन का. ठीक है, बैक्टीरिया 20 मिनट्स में सेल्फ रेप्लिकेट करता है, वहीं पे फंगस जो है वो, कुछ फंगल स्पीशीज जो है वो 1 घंटे में रेप्लिकेट करते हैं. ठीक है, तो ये कैपेसिटी है. उसके बाद देन देयर इज कैपेसिटी टू चेंज ओवर टाइम बाय ग्रेजुअल इवोल्यूशन. ठीक है, सो इवोल्यूशन तो चल ही रहा है, ग्रेजुअल इवोल्यूशन तो हो ही रहा है राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ. इवन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिग बैंग, जब से बिग बैंग शुरू हुआ, ठीक है, बिग बैंग हुआ, यूनिवर्स बना, तो इट इज सेड दैट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग. यूनिवर्स तब से वो एक्सपेंड होना शुरू हुआ है और अभी भी एक्सपेंड ही हो रहा है. ठीक है ना. सो चेंज इज ओनली कांस्टेंट. ठीक है, परिवर्तन ही संसार का नियम है. सो ग्रेजुअल इवोल्यूशन जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जब पहला सेल बना था तब से लेके अभी तक इवोल्यूशन हो ही रहा है. ठीक है, और पुराने स्पीशीज जो हैं वो एक्सटेंड हो रहे हैं, नए स्पीशीज इवॉल्व हो रहे हैं. ठीक है, तो ये हो ही रहा है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है इन ऑर्डर टू सर्वाइव. ठीक है ना. स्पीशीज जो है उनके सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है. डार्विन का लॉ है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो जो इवॉल्व कर गया वो सर्वाइव करेगा, जो नहीं इवॉल्व कर पाया वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा. ओके, सो these were the points which make living organisms very special. These are the special properties which make which distinguish living organisms from non-living matter. Now in your paper I'm going to teach you physical foundations and evolutionary foundations of biochemistry, and
these two topics I'm going to cover. And in physical foundations we'll discuss basically bioenergetics. It is about the extraction of energy from the surrounding and using the energy. तो energy से related है, ठीक है, physical foundations. तो उसमें laws of thermodynamics, enthalpy, entropy और एनर्जी कपलिंग, रिएक्शंस वगैरह, ये सब हम लोग इसमें फिजिकल फाउंडेशंस में देखेंगे. और इवोल्यूशनरी फाउंडेशंस में हम लोग बेसिकली केमिकल इवोल्यूशन डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिकल फाउंडेशंस डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, सो गुड बाय फॉर नाउ.